فیصل آباد کے شہری آٹے کی ممکنہ قلت کے لیے ہو جائیں تیار۔ نئے بجٹ میں عائد کیا گیا ہے نیا ٹیکس عائد کرنے کے سرکاری فیصلے کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن صفے آرا۔ 24 جون سے فلور ملز بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ فیصل آباد کے شہری آٹے کی ممکنہ قلت کے لیے ہو جائیں تیار۔ نئے بجٹ میں عائد کیا گیا ہے نیا ٹیکس عائد کرنے کے سرکاری فیصلے کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن صفے آرا ہے۔ حکومت نے فلور ملز کی مجموعی سیل پر عائد 1.25% ٹیکس میں اضافہ کرتے ہوئے ٹرن اوور ٹیکس 1.25% کر دیا ہے، جس کا بلا واسطہ اثر آٹے کی قیمتوں پر پڑے گا۔ ایک مزدور ہے، وہ 700-800 روپیہ دیہاڑی کما رہا ہے، اگر اس کو اتنا زیادہ مہنگا آٹا ملے گا تو وہ کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا اور دوسری کام جو ہیں وہ کر سکے گا۔ اس طرح سے آٹے کی جو قیمتیں ہیں نا وہ اوپر نہیں جانی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اقدامات کریں۔ رمضان کے بعد آٹے کی قیمتیں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اب نیکسٹ منتھ پھر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ مزید آٹا بڑھنے جا رہا ہے، تو اب دیکھیں غریب عوام کہاں جائے۔ آٹے کی قیمت پر ٹرن اوور ٹیکس میں 400% اضافہ اور چوکر پر بھی 17% سیل ٹیکس عائد کرنے سے آٹے کی قیمت متاثر ہوگی۔ ٹیکس عائد کرنے کے سرکاری فیصلے کو واپس لینے کے لیے فلور مل ایسوسی ایشن نے حکومت پنجاب کو 23 جون کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ چیئرمین فلور ملز شفیق انجم کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو 24 جون سے فلور ملز بند کر دی جائیں گے۔ لگے ہوئے ٹیکس کو 500% 5 ٹائم بڑھا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوکر جو ہے وہ اس کے اوپر سیل ٹیکس کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ اس سے آٹے کا بیگ جو ہے وہ 100 روپیہ مہنگا ہو جائے گا، یعنی 5 روپے کلو آٹا مہنگا ہو جائے گا، اور اس مہنگائی کے دور میں عوام پہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ جبکہ چنیوٹ میں فلور ملوں کا گندم کا کوٹا مختص نہ ہونے سے یوٹیلٹی سٹورز اور سستے سہولت بازاروں میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ دہاڑی دار طبقہ مہنگائی کی چکی پس رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹرن اوور ٹیکس تو لگا دیا گیا ہے، لیکن فلور مل مالکان کی جانب سے اس کا سارا ملبہ عوام پر ڈال دیا جائے گا، جس حوالے سے کوئی بہتر پالیسی مرتب کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرن اوور میں اضافے اور چوکر پر ٹیکس کیوں بڑھائے۔ جھنگ فلور ملز ایسوسی ایشن نے سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر زاہد خان کی صدارت میں فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ ضلع بھر کی تمام 23 فلور ملز کے مالکان نے شرکت کی۔ فلور ملز کا کہنا تھا کہ ٹرن اوور میں اضافہ اور چوکر پر بھی مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ حکومت سبسڈی کے تحت گندم دینے کو تیار نہیں اور مل مالکان کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے ٹیکس میں اضافہ واپس نہ لیا تو 24 جون سے ضلع بھر کی تمام فلور ملز بند کر کے آٹے کی سپلائی روک دی جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ ٹیکس میں اضافہ واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ 2021 کے بجٹ میں جو ٹیکس گورنمنٹ نے بیجا ٹیکس فلور ملز پہ لگا دیے گئے ہیں، جس میں ٹرن اوور 0.25 تھا اس کو بڑھا کر 1.25 کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے چوکر کا جو ٹیکس ہے اس کو 17% اس پہ سیل ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح آٹے کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور آٹے کا ریٹ جب بڑھے گا تو عوام میں پریشانی ہوگی اور ایک مہنگائی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اس لیے ہم نے فلور مل 24 جون سے بند کر رہے ہیں تاکہ اس ٹیکس کو جو ہے گورنمنٹ واپس لے، اور جب تک گورنمنٹ واپس نہیں لے گی اس وقت تک غیر معینہ مدت کے لیے فلور مل۔ چنیوٹ میں حکومت کی ناقص پالیسیاں، ایک مہینے بعد بھی فلور ملز کا گندم کوٹا مختص نہ ہو سکا۔ رعایتی نرخوں کا آٹا نایاب ہو گیا۔ خریدار شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ حکومت کی یوٹیلیٹی سٹورز پر اربوں روپے کی سبسڈی کا پول کھل گیا ہے۔ آٹے کی قلت کے باعث خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیسکو افسران ان ایکشن 70 کروڑ کی عدم ادائیگی پر واسا فیصل آباد کے 8 بڑے کنیکشنز کاٹ دیے گئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فیسکو نے لگ بھگ 70 کروڑ روپے کی عدم ادائیگی پر 8 بڑے کنیکشن کاٹ دیے۔ واسا کی سروسز متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ جھنگ برانچ پر 29 ٹیوب ویلز اور چنیوٹ سے پانی کی فراہمی رک گئی۔ شہری علاقوں میں پانی کی فراہمی چند گھنٹوں میں متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ واسا کی سروس بہت خراب جا رہی ہیں۔ ایک تو یہاں پہ جگہ جگہ سیوریج کا پانی بہت کھڑا ہے اور سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ پینے کا پانی نہیں میسر، کہیں پہ بہت گندا پانی آ رہا ہے صاف پانی کے پائپس میں، اور کئی جگہ تو پانی آ ہی نہیں رہا۔ گھر چ پانی پینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی گندا آتا وا، گلیاں چ پانی کھڑا رہتا وا،
वासा वाले गल नहीं सुनते हैं। बाबा चक डिस्पोजल, अकबर चौक डिस्पोजल, मंसूराबाद डिस्पोजल स्टेशन, जिलापुर डिस्पोजल, जोहर कॉलोनी डिस्पोजल और डिस्पोजल नंबर 38 भी बंद हो गए। मसला हल न किया गया तो चंद घंटों में सीवरेज के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तमाम वासा हुकाम कहते हैं कि अदायगी के लिए कोशिशें जारी हैं। वासा ने फेस्को के कुछ वाजिबात अदा करने हैं, जिसकी वजह से फेस्को ने हमारे कुछ डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्पोजल स्टेशन हैं और कुछ ट्यूबवेल्स हैं। वासा तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको मैक्सिमम पेमेंट करे, जिसमें हम उनको हर माह 2 से 4 करोड़ रुपए अदा कर रहे हैं ताकि हमारा एक बैलेंस चलता रहे। वासा हुकाम कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान ने विरासती इंतकाल मुकम्मल करने और रिकवरी के लिए 30 जून को डेडलाइन दे दी। तरक्याती कामों की माहाना रिपोर्ट भी मरतब करने की हिदायत कर दी है। कमिश्नर साकिब मन्नान की सदारत में रेवेन्यू और तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, ज़राई इनकम टैक्स और आबियाना वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। अराजी का विरासती इंतकाल मुकम्मल करने की भी डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा कि सरकारी वाजिबात भी फौरी वसूल किए जाएं वरना कार्रवाई होगी। कमिश्नर साकिब मन्नान ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में साइलिन को सहूलियात देने की भी हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि वागुजार करवाई गई सरकारी अराजी का बेहतर मुसरफ किया जाएगा। तनाजरीन, झंग और टोबा में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए गए। वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों का रश। दूसरी जानिब कोरोना की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। झंग में 2 रोज तक वैक्सीन न होने से वैक्सीनेशन का सिलसिला बंद रहा। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा सेहत की जानिब से DHQ अस्पताल सेंटर समेत तमाम सेंटर्स में वैक्सीन तकसीम की गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार नूर का कहना था कि इब्तदाई तौर पर 9600 डोज भिजवाई गई हैं। मजीद वैक्सीन भी आती रहेगी। उन्होंने कहा शहरियों के ताउन से कोरोना केसेस में कमी आई है। सेंटर हमारे जिले में फंक्शनल है, जिसमें DHQ है, तीनों हमारे 4 THQ हैं और RSC हैं। हमें 9600 डोज रात मिली थी, जो कि रात ही हमने तकसीम कर दी है और सुबह 8 बजे सब सेंटर पे काम शुरू हो गया है। महकमा सेहत टोबा टेक सिंह में 22,000 डोज मौजूद है, जो मुख्तलिफ सेंटर्स पर लोगों को बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाई जा रही है। आज मजीद वैक्सीन टोबा पहुंच जाएगी, जिसके बाद कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन की वजह से हमारा नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं। इसकी वजह इम्यूनिटी है और लोगों का हमारा साथ ताउन है। हम चाहते हैं कि आवाम सारे शामिल हों और मैक्सिमम हमारी वैक्सीनेशन हो जाए ताकि हम बिल्कुल इससे कम्प्लीटली फ्री हो सके। कोरोना केसेस में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। जेर इलाज मरीजों की तादाद 37 रह गई है, जबकि टोबा और चिन्योट में भी कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में MPA मुस्लिम लीग नून राना शुएब अदरीस की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी की समात। 50,000 रुपये मचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली। MPA राना शुएब अदरीस के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज था। राना शुएब अदरीस ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर रखी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम अनवर चौधरी की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने MPA की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी 50,000 रुपये मचलकों के एवज मंजूर कर ली। टोबा टेक्सिंग में एहसास प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। खवातीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं बैठने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शाहिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग म्यूनिसिपल कमेटी में बनाए गए एहसास प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान है। बैठने के लिए किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया। सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से घंटों नीचे बैठना पड़ता है। पहले कुर्सियां लगती थी और पानी का भी बंदोबस्त होता था। अब खवातीन को कोई सहूलत मुहैया नहीं की जा रही। नहीं कोई सामान नहीं, कोई सामान नहीं, बांधदा खड़ोमानदा इंतजाम कोई भी नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। खड़े होकर चले जाते हैं। पिछली दफा है बहुत गर्मी सी, धूप पर सुबह 8 बजे से आए थे, 5 बजे शाम चले गए, मैसेज आया नहीं, कहते तुम्हारे पैसे नहीं आए। आज फिर आए, फिर खड़े होकर खड़े। खवातीन का कहना है कि उन्हें दिन भर मर्दों में धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ बैठने के कोई इंतजाम नहीं है। जहाँ मर्द है वहाँ ही औरतें। इनको चाहिए कि लहदा इंतजाम रहे, मर्द और औरतें लहदा खड़ी हो जाए। इन्होंने ये इंतजाम अच्छी तरीके से नहीं बनाया हुआ है। वहाँ ही मर्द है वहाँ ही औरतें, इस तरह इंतजाम नहीं होना चाहिए। खवातीन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर बेहतरीन इंतजामात करने का मुतालबा किया है ताकि आसानी के साथ पैसे वसूल किए जा सकें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि महकमा कस्टम एंटी स्मगलिंग झंग का सारा अमला स्पेशल टास्क के लिए फैसलाबाद बुला लिया गया। दफ्तर को ताले लग गए। झंग से नॉन कस्टम सामान लेकर गुजरने वाले अफराद की मौजें लग गईं। झंग में सैटेलाइट टाउन के मुकाम पर बना कस्टम एंटी स्मगलिंग का दफ्तर कई रोज से बंद पड़ा है।
तमाम तर जिम्मेदारी चौकीदार पर डाल दी गई है। कस्टम हुकाम का कहना है कि स्पेशल टास्क के लिए जंग की टीम को फैसलाबाद बुलाया गया है, जल्द ही वापस भिजवा दिया जाएगा। दूसरी जानिब जंग से नॉन कस्टम सामान लेकर गुजरने वाले अफराद की मौजें लग गई। कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर गाड़ियों और सामान को गुजारा जा रहा है। फैसलाबाद सफाई कंपनी, महकमा सेहत और सोशल सिक्योरिटी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के नादहिंदा निकले। तीनों महकमों ने गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा किया। सरकारी महकमे भी नादहिंदा निकले। फैसलाबाद सफाई कंपनी, महकमा सेहत और सोशल सिक्योरिटी टोकन टैक्स की मद में नादहिंदा हैं। महकमों ने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया। ईटीओ मोटर ब्रांच ने नादहिंदगान महकमों को नोटिस जारी कर दिए। आपको बताएं कि सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा, पुलिस, सेहत, रेलवे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 10 सरकारी इदारों के नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल 66 करोड़ के बिल जमा नहीं करवाए गए। सरकारी इदारों की जानिब से 66 करोड़ रुपए जून का बिल जमा नहीं कराया गया। वासा, पुलिस, महकमा सेहत, महकमा रेलवे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 10 सरकारी इदारों का नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल है। फैसलाबाद में अब होगी महफूज पार्किंग, ओवर चार्जिंग होगी और ना ही कोई और मसला। पार्किंग कंपनी ने डिजिटल क्यूआर सिस्टम मुतारिफ करा दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सिस्टम का इफ्तिताह किया। पार्किंग कंपनी ने अलाइड अस्पताल के पार्किंग पॉइंट पर डिजिटल क्यूआर सिस्टम का आगाज कर दिया। मुख्तसर तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम परवेज, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी, मैनेजर पार्किंग कंपनी आमिर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अयूब रिसर्च सेंटर के मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ मैदान में आ गए। झंग रोड पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने ओहदों की बहाली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अयूब रिसर्च सेंटर के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ झंग रोड पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन अफसरान ने ओहदों की बहाली पर जोर दिया। मुजाहिरीन का कहना था गंदम, चावल और शुगर कैन समेत दीगर फसलों पर सर्च करने वाले इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है, जो सरासर ज्यादती है। इन बिटवीन अगर आप तमाम बंदों को वहाँ से हटा के नया स्टाफ लाते हैं तो वो जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो नए बंदे की समझ में नहीं आ सकते। जो जर्म प्लाज्मा हमारे पास है, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, वो वही साइंटिस्ट जानता होता है जिसका वो एक्सपेरिमेंट। 4 जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, गंदम है, गन्ना है, मकई है, चावल है, ये प्रॉफिटेबल हमारे इदारे हैं चारों के चारों। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है वैरायटियों में। तो अब हमें अफसोस इस बात का है, अगर हमारे अदारे खसारे में हैं फिर तो बजाय गवर्नमेंट फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करे। जब अदारे हमारे जो हैं माशाल्लाह बम्पर क्रॉप दे रहे हैं, बम्पर वैरायटी दे रहे हैं, फिर क्या वजह है इनको कि एक प्राइवेट कंपनियों का मालिक जमशेद चीमा जिसका नाम है वो हमारे अदारों को पर कब्जा करना चाहता है, वो इनको कंपनीज में कन्वर्ट करना चाहता है। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत अयूब रिसर्च सेंटर को माफियाज के हाथों फरोख्त करना चाहती है, लेकिन वो हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। जाली अद्वियात बनाने वाला बंदा, उसने हमारे अभी ऑन बोर्ड तो सिर्फ 4 इदारे कहे गए हैं, लेकिन हमें पता चला कि 4 से ज्यादा इदारे हैं जिनको वो प्राइवेट करना चाहते हैं। और वो सिर्फ इसलिए प्राइवेट करना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो 100 साल जम प्लाज्म है उस पर वो कब्जा कर सकें। ये जम प्लाज्म हमारे पास से चला गया, बिलीव मी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम लोग एक एक रोटी को तरसेंगे। यहाँ पे अनारकी फैल जाएगी, यहाँ पे इंतशार फैल जाएगा। जब तक हमें एक अनचैलेंजेबल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से, हमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी बताया जा चुका है कि वो प्लान चेंज हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन जब तक हमारे हाथों में वो अनचैलेंजेबल डॉक्यूमेंट नहीं आएगा कि हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मनसूख कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मसूद नौमान के सरकारी स्कूल्स के दौरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जानी शाह में स्टाफ और असातिज़ा की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मसूद नौमान ने तलबा से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी की। मसूद नौमान ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। स्कूल इंतजामिया को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत भी की। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एडवोकेट आमिर सुल्तान की रिहाइशगाह पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 68वीं सालगिरह मनाई गई। जालों ने भरपूर शिरकत की और जियो भुट्टो के नारे लगाए।
उसे तीर कहते हैं, दिल में जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, और जो मुल्क की खातिर अपनी जान दे दे उसे हम मोहब्बत में बेनजीर कहते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। जालों ने जिए भुट्टो के नारे लगाए और एक दूसरे को केक भी खिलाया। रहनुमाओं का कहना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज हम इस तजदीद अहद के साथ सालगिरह मना रहे हैं कि हम अपनी लीडर के साथ जो उनके अफकार हैं, जो उनका नज़रिया, उस पर हम चलते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना सियासी किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाके पाकिस्तान के जो महरूम तबके हैं उनके लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। शुरका ने बेनजीर भुट्टो शहीद की जमहूरी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। आज का जो दिन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए बड़ा अहमियत का दिन है। इस दिन वो अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और इस दिन वो उनसे अहद करते हैं कि बीबी जो आपका कारवां था हम उसी के मुसाफिर हैं और वो कारवां, वो काफिला रुका नहीं, थमा नहीं। इस मौका पर जियालों ने पार्टी मंशूर आवाम तक पहुंचाने का भी अज़म किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस खान के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में 20वीं नेटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां जारी हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अली रजा। इस्लामाबाद में होने वाली 20वीं नेटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां जारी हैं। वुमेन टीम के चुनाव के लिए पंजाब भर से लड़कियों के ट्रायल हुए। कैंप में गुजरांवाला, लाहौर, डेरा गाजी खान, सियालकोट और मुल्तान से 60 खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। नेटबॉल सिलेक्शन कमेटी में पंजाब के सदर मियां आसिम बशीर, जनरल सेक्रेटरी मियां तारक हमीद, सिटी के सदर मियां नवीद नजीर, सिटी वुमेन सदर नासरा कफेल ने शिरकत की। वुमेन खिलाड़ियों का कहना था कि लॉकडाउन के बाद दोबारा खवातीन मैदान में आई हैं। खेलना मुश्किल है मगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी। पंजाब फेडरेशन का थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी इतना अच्छा हमारे लिए ट्रायल्स का इवेंट स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इसमें ना हम चैंपियनशिप में वाजिया नुमाया पोजीशन हासिल करेंगे। लॉकडाउन में काफ़ी एक ब्रेक आ गया है, लेकिन लड़कियां उसी तरह एंथुजियास्टिक होके आई हैं, खेल रही हैं और इंशाल्लाह ताला मुकाबला करके और अच्छी पोजीशन हासिल करेंगी। ट्रायल के दौरान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां फाहिद इस्लाम और कोच वुमेन रजवाना मौजूद थीं। कैमरामैन मुअज्जम के साथ अली रजा, फैसलाबाद।